Hello students, in this video we will be discussing the last 4 problems of triangle and its properties last exercise for the class 7 standard. Let us go with the fifth one. A tree is broken at a height of 5 meter. Okay, they are talking about the tree which is broken at the height of 5 meter. Total height of tree हमें नहीं पता. They did not give the height of the tree, but it is getting broken down at the height of 5 meter. We shall consider this as the total tree, total height of the tree. Total height we don't know first of all. Okay, this is a rough figure of the tree we are drawing. So from here the tree gets broken at a height of how much? The tree is getting broken at a height of 5 meter. Total height of the tree हमें नहीं पता. And after it is getting broken, so the ऊपर वाला part जो है, when it is getting broken, it falls on the ground in that way. It falls on the ground. It falls on the ground in this way. Okay, थोड़ा बहुत neat कर लेते हैं. Let us do it properly. It falls on the ground. Okay, lands on the ground. Okay, so यही ऊपर वाला part, when it is getting broken, it will fall it and that. It will fall it in that way, and it is going to land it on the ground with the support of the remaining part of the tree. Okay, the tree is touching the ground at the base of how much? 12 meter. How much? At the base of 12 meter, the upper part of the tree which is getting broken, it touches the ground at the base. At the base. Kitna total? They did not give you. They are saying when it touches the ground from the tree, remaining part of the tree and the broken part of the tree, the distance is how much? 12 meter. You can see here they gave you the base. The base of the tree is how much? 12 meter. Okay, question कितना टूटा है वो नहीं पूछे. The total question is to find out what is the total height of the tree. Remember that one. They are asking to find out the original height of the tree. ये total tree जो टूट गया, कहाँ से टूट गया? It got broken from 5 meter. So when it got broken, it got landed on the ground at the base of 12 meter. We shall give the name of this, that is A, B, C. Okay, और ये हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ट्री हमेशा 90 डिग्री स्ट्रेट रहते हैं, दैट विल कंसिडर एज ए 90 डिग्री. ओके, सो 90 डिग्री के ऊपर से जो भी रहेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस. सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, फर्स्ट कम्स ए लेफ्ट हैंड साइड कम्स ए हाइपोटेन्यूस. अब रिमेनिंग कौन से? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी का वैल्यू हमें पता है, इट इज 5 स्क्वायर. बी सी का वैल्यू हमें पता है, इट इज 12 स्क्वायर. 5 का वैल्यू में 25, 12 का वैल्यू में 144. टोटल करेंगे विल गेट इट 169. दिस इज ए सी स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, राइट हैंड साइड को भी हम किस में लाएंगे? स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 into 13 मल्टीप्लाई विल गेट 169. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. इफ वी डू इट, square and square will get cancelled, so AC will be equal to 13 meter. Okay, this is now 13 meter. Okay, ये जो broken part है ना, उसका height कितना मिला हमें? 13 meter. Okay, और यही broken part was a part of the tree. Okay, so what we have to do it now, the broken part height and the remaining part of the height total group, that will be the original height of the tree. Therefore, original height of tree So ये broken part है. Okay, so यही जब हम इसको खड़ा कर देंगे, this will be how much? 13 meter. When it was a part of the tree, it will be 13 meter. क्योंकि गिरने के बाद उसका height कितना है? 13 meter. Correct? So this 13 meters should be added with the remaining part of the height of the tree, that is how much? 5 meter. So 13 plus 5 will give me how much? This is what the total and the original height of the tree. Okay, I hope so you have been clear. Let us go with the next one. Okay, as you can see this question, okay, we have to just identify among these three equations which one is true.
Okay, they give the figure, it is given in our question itself. The angles are given, one angle we are not able, they did not give the angle of P, we have to find out. हमें पता है sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. So angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180. Properties, sum of angles of a triangle is equal to 180. P हमें नहीं पता, P को लिखेंगे as it is, Q का वैल्यू 25, R का वैल्यू 65 is equal to 180. Angle P 25 plus 65 आएगा 90 is equal to 180. So angle P is equal to 180 minus 90. तो angle P का वैल्यू कितना है? 90 degree. We got it. So P का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. How much it is? 90 degree. अब उसमें आइडेंटिफाई कैसा करें, कौन सा ट्रू है? नॉट टू वरी, जस्ट वी नो इट पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ट्राइंगल है राइट एंगल. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल को हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. ओके, बाय यूजिंग द हाइपोटेन्यूज फार्मूला. व्हाट इज दैट? 90 डिग्री का जो भी अपोजिट रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? हाइपोटेन्यूज. Okay, and what is the statement? Already we did it in the last video. Just go through once. Okay, once again I'll repeat that statement. Square of hypotenuse is equal to sum of square of remaining two sides. Square of hypotenuse. Hypotenuse कौन सा है? 90 का opposite. कौन सा है वो? QR. So I'll be writing QR square equal to sum of remaining two sides. अब जो दो साइड बचे हुए हैं उनको क्या करने का है? उनके स्क्वायर को ऐड करने का. अब कौन से साइड बचे हैं? वन इज PQ, अदर वन इज PR. PQ square plus PR square. This is what the formula we got it for this triangle. Okay, अब इसमें से आइडेंटिफाई करो ये तीन में से कौन सा हमारा सुटेबल है इक्वेशन. ओके, वी कैन सी हियर PQ square plus QR square. PQ square पर P, यहाँ पे QR है, यहाँ पे हमारे मिला है PR square. So first one is false. Second one देखो, PQ square PR square. तुम्हें you write it RP or PR, both are one and the same, does not matter, is equal to QR square. This equation and our equation is what? Same. It is same. Hence the correct answer for this sixth question is second equation. So second equation is true. थर्ड इक्वेशन भी ट्रू नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड ये क्या है? PQ स्क्वायर. ओके, हमारा है QR स्क्वायर. ओके, और ये दो साइड्स दोनों अलग अलग है. सो थर्ड वन इज आल्सो फॉल्स. So out of three equations there is only one correct and that is the second one, because we are getting the same equation when we applied Pythagoras theorem. I hope so you have been clear with the solution. Let us go with the next one. Let us solve the last second, that is the seventh problem. So they are saying to find out the perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle जिसका length है 40 and the diagonal is 41 सेंटीमीटर. लेंथ दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है. चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा रेक्टेंगल. ओके, और इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज अवर डायगोनल. दोनों भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल रहेंगे. सो आई ड्रॉन ओनली वन, दैट इज इनफ फॉर अस. ओके, लेट अस राइट डाउन इट्स वैल्यूज. डायमेंशन, लेंथ कितना है? 40. तो ये हमारा लेंथ 40 सेंटीमीटर और ये हमारा डायगोनल 41 सेंटीमीटर. ओके, अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ हमें पता है, लेंथ वी नो, ब्रेथ वी डोंट नो. सो ये वैल्यूज, दो वैल्यूज से मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ब्रेथ फर्स्ट. इफ वी फाइंड आउट द ब्रेथ देन वी कैन फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वेरी इजीली. चलो फाइंड आउट करते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू नो इट, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हाउ मच? 90. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ ट्राइंगल को निकालेंगे बाहर. ये है 41, ये है 40. तो गिव द नेम दिस वन एज A B C. A B C D. ओके, रेक्टेंगल के सभी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री रहेंगे. ओके, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. यही एक्सरसाइज स्टार्टिंग 4-5 प्रॉब्लम्स में अप्लाई करें. सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर एज वेल. ओके, एज वी नो 90 के ऑपोजिट जो भी साइड है उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज ऑलवेज हम लेफ्ट साइड लिखेंगे.
That is AC square is equal to AB square plus BC square. AC स्क्वायर का वैल्यू हमें पता दैट इज 41 स्क्वायर. AB हमें फाइंड आउट करने का है दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC हमें पता दैट इज 40 स्क्वायर. ओके 41 स्क्वायर का वैल्यू रहेगा 1681. 41 into 41 if you do it you will get 1681. ओके AB स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज 40 स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1600. अब करना क्या है व्हाट वी गोना डू 1681 को लिखेंगे एज इट इज 1600 को करेंगे ट्रांसफर बिकॉज माइनस 1600 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. अब ए बी स्क्वायर को लिखो लेफ्ट साइड क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करने का है इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600 विल गिव मी 81. ओके अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 कौन से टेबल में आएगा 9 सर. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर. Squares का will get cancelled, so AB will be equal to how much? 9 centimeter. Okay, हमें breadth तो मालूम पड़ गया. This is our 9 centimeter. चलो find out करते perimeter of rectangle. So perimeter of rectangle. Formula should remember. Without formula, I can't find out anything. So 2 of length plus breadth. 2 ऑफ लेंथ का वैल्यू है 40 प्लस ब्रेथ हमें मिला है कितना 9. सो 2 ऑफ 40 प्लस 9 विल गिव मी 49 इज इक्वल टू 2 into 49 विल गिव मी how much 98 centimeter. Okay, that is how to find out the perimeter of rectangle using Pythagoras theorem. ये Pythagoras theorem से हम फाइंड आउट करेंगे ब्रेथ से हम फाइंड आउट करेंगे perimeter of rectangle. Okay, let us go to the last one of that exercise as well as chapter. Okay, the last one. This time they're talking about the rhombus. Let us bring rhombus. Let us draw the rhombus. ये हमारा rhombus. Okay. Now they gave the dimension of diagonals 16 and 30. Diagonals ये दो lines अंदर हम जो draw करेंगे उनको हम बोलेंगे diagonals. These two are the diagonals. Okay. अब what the value they gave us? Let us represent it on figure. ये है हमारा 16 सेंटीमीटर और ये है हमारा 30 सेंटीमीटर. एंड टू एंड फर्स्ट से लेकर लास्ट तक. ठीक है ना. और बीच में रहेगा 90 डिग्री. ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं. पी क्यू आर एस भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं. अब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस फाइंड आउट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस वैल्यू दिए हैं. यूजिंग दैट आई नीड टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 4 into साइड. ये का वैल्यू है साइड. तो पहले मुझे ये सब साइड को क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके लिए मुझे एक ट्रायंगल को निकालना पड़ेगा बाहर. ट्रायंगल को निकालते हैं बाहर. सो दिस वी गोना रिमूव इट आउटसाइड. इसको हम नाम देंगे ओ ए ओ और ऊपर है डी और यहाँ पे रहेगा 90. डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली इन रोम्बस. ओके दैट इज अ प्रॉपर्टी. अब हमें ये दोनों के वैल्यूज पता है बट तुम लोगों को कंफ्यूज होगा क्या क्योंकि तुम लोग डायरेक्टली कंसीडर करोगे 30. नो 30 इज फ्रॉम एंड स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. मैंने सिर्फ इतना लिया है. सो 30 का आधा लिया है. सो 30 का आधा कितना रहेगा ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर. सेम थिंग हम बेस में भी अप्लाई करेंगे. मैंने सिर्फ यहाँ तक लिया है 16 है पूरा. तो 16 का मैंने लिया है आधा. सिर्फ आधा लिया है ए ओ तक ही लिया है. तो 16 का आधा कितना रहेगा 8. सो दिस इज अवर 8 सेंटीमीटर. ये दोनों वैल्यूज यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे क्या साइड ऑफ रोम्बस यूजिंग व्हाट पाइथागोरस थ्योरम. ओके फाइंड आउट करो इसमें से हाइपोटेनस कौन सा है. वन थिंग रिमेंबर 90 के ऑपोजिट जो भी रहेगा उसको हम बोलेंगे 90 के ऑपोजिट जो भी रहेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस. रिमेंबर. ओके सो हाइपोटेनस इज AD स्क्वायर. अब बचे दो साइड कौन से वन इज OA अदर वन इज OD. OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. AD स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज. OA स्क्वायर है 8 स्क्वायर एंड OD है 15.
8 स्क्वायर का वैल्यू है 64, 15 का वैल्यू है 225। दोनों को ऐड करेंगे, how much I'll be getting 2 6 sorry 289 289। यहाँ पे डालेंगे हम AD²। ओके, सो AD², मुझे ये वैल्यू को भी किस में लाने का है, स्क्वायर के फॉर्म में लाने का। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा 289 आएगा कब। सो 17 into 17 मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट इट 289। लेट अस कंफर्म, 7 7 49, 7 में 7 plus 4 will give me 11, 71982। सो मिल गया ना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 into 17। सो AD² इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 17 स्क्वायर का हिसाब, 17 को 17 कितने मल्टीप्लाई करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें, इसलिए वी आर राइटिंग 17 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग विल बी AD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। We got it 17 centimeter. This is the side of rhombus. Using side, we're gonna find out perimeter of rhombus. So perimeter of rhombus formula already I said it. What is it? Perimeter of rhombus. The formula is 4 into side. क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। या तो सबको ऐड करो या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर विल बी द सेम। Okay, so 4 into side how much we got? 17. So 4 into 17 will give me 4 7s are 28, 4 1s are 68 centimeter is a perimeter of rhombus. I hope so you have been clear with both the solutions, and kindly share this video, and thank you for watching the video.